Join everyone for OC class. Join fast, everyone. So, can we start? So, in the last lecture, we had seen about optical sources which are used in the fiber optical communication system. जिसमें से most commonly use light emitting diode or laser diodes. So on the screen you can see there is different type of LEDs we can use in fiber optic communication system and lasers, semiconductor lasers like DFP, DBR, then multi quantum well. These are the laser which are commonly used in fiber optic system. So what are the requirement? What are the requirement or what are the special features must include in these optical sources? So the requirements is its physical dimension. It must be all these optical sources which are using in fiber optic system. It must be compatible. It must be compatible with your small diameter of fibers. Because what are the function? What is the main function of these light sources? Light sources is used to generate the optical beam. ठीक है, and these will carry the information through the optical fibers, so they must be compatible with your small diameter fibers. So its small size, then its low power requirement, it must be compatible with optical fiber geometry, its narrow radiation pattern, fast response time, narrow spectral width, then stability, efficiency, reliability, and it cost. All these are the important requirement. Requirement for what? Optical sources requirement. This is your optical sources requirement. Whatever optical sources you are using in fiber system, it must fulfill all these requirements. Okay, students, is it clear? Now, the last lecture, we already saw the basic LED operation. ठीक है, मैं पढ़ा चुकी हूँ basic LED operation. LED is nothing but a PN junction semiconductor diode. ठीक है, and it act in a when it act in a forward bias, then electron and holes recombine and it will emit the light. Okay, in the form of photons. This is the basic LED operation. देयर आर टू बैंड्स. हाँ, कल किसी को कंफ्यूजन था एनोड और कैथोड में? क्या कंफ्यूजन था?
टर्मिनल्स का मैम शायद से पॉजिटिव हाँ, नेगेटिव। यस, यस। तो फॉरवर्ड बायस में या जब भी पीएन जंक्शन को हम लोग फॉरवर्ड बायस में वर्क कराते हैं, इट व्हेन इट वर्क इन अ फॉरवर्ड बायस, देन that time the p कैथोड का। side, yes, p side is connected to the positive terminal of the battery. When we apply external voltage, that time p and n is the semiconductor use, okay, in the led operation. So p and n semiconductor, so p side is connected to positive terminal of battery and n side of semiconductor is connected to negative terminal of battery. Okay, is it clear? यस मैम। Is it clear? सो अगर ऐसा कनेक्शन होता है, दैट टाइम इट वर्क्स इन अ फॉरवर्ड बायस, ओके। और अगर उसके उल्टा वाइस वर्सा अगर कनेक्शन करते हो, मतलब पी सेमीकंडक्टर कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ बैटरी एंड एन साइड टू पॉजिटिव, देन इट वर्क इन अ रिवर्स बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस के अपोजिट रिवर्स बायस, क्वाड्रेंट अलग होते हैं उसके। अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक देखते हो बेसिक पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड की, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको समझ में आ जाएगा कर्व। कर्व से समझ में आएगा कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में हाउ पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड वर्क्स। ओके, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट। ये भी हम लोगों ने देख चुके हैं, लाइट इमिटिंग सेमीकंडक्टर्स, हाउ द लाइट विल गेट इमिटेड, मेजॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी कैरियर्स, एंड बिफोर अप्लाइंग वोल्टेज what will happen, and after applying voltage what will happen. Okay, everyone clear? कल का मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। वी विल मूव नेक्स्ट आफ्टर दैट। लाइट इमिटिंग डायोड, ये कल का भी टेबल मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी। दीज आर द डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। अगर पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड बेसिक एलईडी अगर यूज करते हो तो उसमें एक ही टाइप का मटेरियल होता है, यूज होता है पीएनएन में। जैसे गैलियम आर्सेनाइड का, पी और एन दोनों गैलियम आर्सेनाइड के ही यूज होंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज होमो जंक्शन, उसको बोलते हैं होमो जंक्शन, ठीक है, जिसमें पी टाइप एंड एन टाइप फ्रॉम सेम मटेरियल, जैसे कि यहाँ दिया है, दिख रहा है स्क्रीन पे? यस एवरीवन, होमो जंक्शन। होमो जंक्शन मतलब एक ही टाइप का, सेम ही मटेरियल के पी एन एन टाइप आप यूज कर रहे हो, ठीक है। और हेट्रो जंक्शन मतलब अलग अलग यूज कर रहे हो। हेट्रो जंक्शंस मतलब पी एन एन मटेरियल्स आर डिफरेंट, मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। तो एलईडी कंस्ट्रक्शन में या एलईडी स्ट्रक्चर में देर इज टू पॉसिबिलिटीज, एक तो आप होमो जंक्शन मटेरियल यूज कर रहे हो या फिर हेट्रो जंक्शन यूज कर रहे हो। बट होमो जंक्शंस में कैरियर्स जो होती है वो कन्फाइंड नहीं होती है, एंड जो भी लाइट इमिट होता है वो भी कन्फाइंड नहीं होता। ये एक बिग डिसएडवांटेजेस है होमो जंक्शन। अगर आप पी एंड एन टाइप जो सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हो वो अगर सेम मटेरियल का यूज कर रहे हो, तो इट कम इन अ कैटेगरी ऑफ होमो जंक्शन। देखो, पी एंड एन सेमीकंडक्टर कंबाइनिंग इट फॉर्म अ जंक्शन एंड इट इज मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड। ओके, सो बट the big disadvantages of using this homo junction is that carriers, जो भी carriers मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जब रिकम्बाइन होते हैं तो वो प्रॉपरली कन्फाइंड नहीं होते, और उसकी वजह से क्या होता है, जो लाइट इमिट होता है वो क्या होता है, it will be not emit the light properly. So due to that we will use heterojunctions. Homo junction मतलब pn junction formed with a single semiconductor, with a single semiconductor material, and in the homo junction LED it does not confine emitted radiation very well. जो भी रेडिएट होता है, जो भी फोटॉन्स रेडिएट होते हैं वो प्रॉपरली रेडिएट नहीं होते हैं। क्योंकि फोटॉन्स कैसे रेडिएट होते हैं, फोटॉन्स विल रेडिएट फ्रॉम द एज ऑफ द जंक्शन। मैंने कल क्या बताया था, बैरियर और जंक्शन, ये नाम लिया था मैंने। तो ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स वो कहाँ फॉर्म होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कहाँ फॉर्म होती है, majority carriers from p side and majority carriers from n side, electron and holes will recombine, it will cross the barrier and enter into the junction,
ओके, कल ये बताया था ना एलईडी का बेसिक कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसमें बताया था मैंने कि रिकम्बिनेशन कहाँ फॉर्म होता है। ठीक है, बिफोर अप्लाइंग वोल्टेज they have not enough energy, electron and holes, they are not having enough energy to cross the barrier, but after applying the forward voltage, what will happen? The electrons, majority carriers and holes from p side and n side, they will get enough energy to cross the barrier and combine into the junction. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव रीजन, जहाँ से वो रिकम्बिनेशन फॉर्म होती है और जहाँ से लाइट इमिट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिव रीजन। ओके, बट होमो जंक्शन एलईडी अगर यूज करते हो, अगर एक ही टाइप का, एक ही मटेरियल से बना हुआ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर यूज करते हो, तो उसमें जो भी लाइट या रेडिएशंस होती है वो क्या होती है, वेरी वेल कन्फाइंड नहीं होती है, बिकॉज recombination of electron and holes is not take place properly in the homojunction LED. ठीक है, that's why reason we will use a heterojunction. Heterojunction LED is used. Heterojunction is formed by dissimilar semiconductors. Okay, जैसे कि मैं स्लाइड में दिखा देती हूँ heterojunctions. दिस इज द हेट्रोजंक्शन, जिसमें अलग अलग मटेरियल जो टेबल में जैसे मैंने दिखाया था, नंबर ऑफ मटेरियल यूज, उनकी वेवलेंथ रेंज और उनकी बैंड गैप एनर्जी। सो इन दिस टेबल यू कैन सी द डिफरेंट मटेरियल यूज फॉर एलईडी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसका रिस्पेक्टिव वेवलेंथ रेंज और बैंड गैप एनर्जी इज गिवन इन द टेबल। सो अकॉर्डिंग टू दैट हेट्रोजंक्शन में आप नंबर ऑफ मटेरियल्स यूज कर सकते हो, पी एन एन टाइप मटेरियल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, तो दैट इज कॉल्ड एज अ हेट्रोजंक्शन एलईडी। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेट्रोजंक्शन एलईडी, व्हाट इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद होमोजंक्शन एलईडी? यस, carriers या recombination is not confined and emitted radiation is also not confined in the homojunction LED. This is the these are the two reasons, these are the two reasons why we are not using homojunction LED. Instead of homojunction, we will use heterojunction LED. Heterojunction is formed by dissimilar semiconductors. Okay, the material used for this heterojunction semiconductor or heterojunction LED is different, dissimilar. Okay, समझ में आया? That is also called as a double heterojunction emitter. Okay, समझ में आया? Hetero means different and homo means सिंगल सिंगल सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है उसमें, और हेट्रो में डिसिमिलर, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ डबल हेट्रोजंक्शन इमिटर. Two materials have different band gap energies and different refractive index is used in heterojunction LED. Is it clear? Is it clear, class? Yes. होमोजंक्शन और हेट्रोजंक्शन एलईडी में किसी को कोई कंफ्यूजन है? होमोजंक्शन मतलब single semiconductor material is used in the homojunction LED, and in the heterojunction it is formed by dissimilar semiconductor, it is also called as double heterojunction. ठीक है, two materials with different band gap energies and different refractive index is used in heterojunction. ठीक है, so the changes in band gap, तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स यूज कर रहे हो तो डिफरेंट बैंड गैप्स एनर्जी भी रहेंगी, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, और देर इज चेंज इन बैंड गैप, सो बैंड गैप एनर्जी भी चेंज रहेगी। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट बैंड गैप एनर्जी की वजह से जो पोटेंशियल बैरियर था बिटवीन डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स पी एंड एन, उसकी वजह से जो पोटेंशियल बैरियर था, it will create the changes in band gap energy, it will create potential barrier for both electrons and holes. So the free charges can meet and recombine only in the narrow well defined active layer. This is the big advantage of using heterojunction. ठीक है, क्या होता है, डिफरेंट बैंड गैप एनर्जीज है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज कर रहे हो, तो two materials have different band gap energies and different refractive index, and due to that band gap energies, due to that change in band gap energies,
It create potential barriers for both a majority carrier electron and holes. So these charge carriers can recombine only in the active row or in the active region, that is called as a well defined active layer. So due to that, एक्टिव रीजन में अगर सिर्फ एक्टिव रीजन में ही आप रिकम्बिनेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन और होल्स का, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी रेडिएशन हो रहा है, फोटॉन्स का जो रेडिएशन हो रहा है वो वेल डिफाइंड रहेगा। ठीक है, समझ में आया, जो कि होमो जंक्शन एलईडी में पॉसिबल नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था, अगर एक ही टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हो, हैविंग सेम बैंड गैप एनर्जी, हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स डू नॉट रिकम्बाइन डायरेक्टली। ओके, और उसकी वजह से वो क्या बन जाता था, इनइफिशियंट मटेरियल, इनएफिशिएंट मटेरियल बन जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स विल बी नॉट प्रॉपरली डिफाइंड, और अगर रिकम्बिनेशन नहीं होगा तो फोटॉन्स विल नॉट गेट इमिटेड। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया कि होमो जंक्शन एलईडी एंड हेट्रो जंक्शन एलईडी। सो मोस्ट प्रोबेबली हेट्रोजंक्शन हेट्रोजंक्शन एलईडी इज मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड। ओके, समझ में आया, समझ में आ गया हाँ। क्लास। सो यहाँ पे जैसे दिख रहा है, in the heterojunction different p and n material is used. Why? Because in the heterojunction carriers are confined, light is also confined. So there is two types, single heterojunction, double heterojunction. Heterojunctions में भी दो है, single heterojunction and double heterojunctions. So यहाँ पे डायग्राम में अगर दिख रहा होगा, heterojunction is a junction between two different semiconductor with different band gap energies, जैसे कि मैंने अभी बताया। So the difference in band gap energies create one way barrier, it create only one way barrier, अलग अलग barriers नहीं रहेंगे, सिर्फ एक ही one way barrier रहेगा, जिसकी वजह से जो charge carrier है, that is your electron and holes are attracted over the barrier due to its higher band gap energy to the lower band gap energy। जो भी इलेक्ट्रॉन एंड होल्स है वो हायर बैंड गैप एनर्जी टू लोअर बैंड गैप एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे, इट विल रिकम्बाइन एंड इट विल इमिट द लाइट। So the light is also confined in the heterojunction. Is it clear? This is the diagram for single heterojunction, जिसमें P and N मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड के यूज हुए हैं, और P प्लस, P प्लस मतलब कौन सा मटेरियल यूज किया है, एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, जैसे यहाँ नीचे लिखा ही हुआ है। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड ऑफ PNN मटेरियल, सिंगल हेट्रोडाइन। और सेकंड जो P प्लस लेयर दिख रही है वो किस मटेरियल की बनी है, एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड। दिस इज कॉल्ड एज सिंगल हेट्रोजंक्शन एलईडी। एंड डबल हेट्रोजंक्शन, दिस इज डबल हेट्रोजंक्शन। ओके, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अलग अलग मटेरियल्स की है। N स्टैंड फॉर N टाइप मटेरियल, P स्टैंड फॉर P टाइप मटेरियल। ठीक है, और मटेरियल्स कौन कौन सी है, इंडियम फॉस्फोरस, इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस, इंडियम फॉस्फोरस। ठीक है, ऊपर की लेयर कौन सी होती है, हायर लेयर किसकी होती है, हायर बैंड, हायर बैंड कौन सा होता है, कंडक्शन बैंड। नो, द कंडक्शन बैंड इज द लोअर एनर्जी लेवल। कंडक्शन बैंड जो होता है वो लोअर एनर्जी लेवल होता है, वैलेंस बैंड होता है वो हायर एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, सो हियर इन द डबल हेट्रोजंक्शन इंडियम फॉस्फोरस का जो पी लेयर है हैज अ हायर एनर्जी लेवल देन एन टाइप इंडियम फॉस्फोरस। ठीक है, बट द बैंड गैप इज सेम, इन दोनों के बीच में जो बैंड गैप होती है दैट इज 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द बैंड गैप बिटवीन p type and n type of indium phosphorus material, its band gap is same but the energy levels is different। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में दिख ही रहा होगा। ओके, इन दोनों के बीच में कौन सा मटेरियल सैंडविच हुआ है, डबल हेट्रोजंक्शन में। डबल हेट्रोजंक्शन में क्या होता है, when a layer of
lower band gap energy is sandwich between a layer of material with higher energy band gap. So इसमें कौन सी लेयर सैंडविच हुई है? लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल के बीच में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है? टेल मी द नेम. यस क्लास. Between the higher energy level and lower energy level, which material is get sandwich? Sandwich matlab in present in between the two material, that is called as the sandwich material. So double heterojunction में कौन सा material is present between the higher energy level and lower energy level? That is p and n. p and n semiconductor किस मटेरियल के बने हैं? इंडियम फॉस्फोरस. और उसके बीच में कौन सी लेयर है? यस क्लास. यस क्लास. अरे स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं? स्क्रीन पे दिख रहा है ना कौन सा मटेरियल है? यस क्लास. Which material is present between N and P type of indium phosphorus? Yes. Tell me the name of material. Indium, gallium, arsenide and phosphorus. This is the material which is present between P type and N type of indium phosphorus. ओके okay? समझ में आया? तो नीचे में जो ये ग्राफ दिख रहा है दैट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज फॉर पी टाइप एंड एन टाइप दोनों का इंडियम फॉस्फोरस. ये जो मटेरियल है उसका पी टाइप और एन टाइप हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज N2 इज इक्वल टू 3.2. दिख रहा है? N2 इज इक्वल टू 3.2 उसका सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. बट बीच में जो लेयर है इन बिटवीन पी एंड एन, बीच में जो लेयर है हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल टू 3.5 जो N1 से इंडिकेट किया है. N1 इज इक्वल टू 3.5. Is it clear class? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. So whatever the recombination take place in double heterojunction, जो भी recombination take place हो रहा है, electrons are attracted from the left hand junction and holes are attracted across the right hand junction. ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं एंड द रिकम्बिनेशन टेक प्लेस इन विच मटेरियल? जो बीच में जो सैंडविच लेयर है उसके बीच वहां पे उस मटेरियल में दैट इज एन टाइप ऑफ योर इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस मटेरियल, उसमें उस मटेरियल में रिकम्बिनेशन टेक प्लेस हो रहा है एंड स्पॉन्टेनियस इमिशन इज ऑकर. जैसे डायग्राम में दिख ही रहा होगा ऊपर की ये सारी लेयर्स है. ठीक है? एन एन पी टाइप ऑफ इंडियम फॉस्फोरस और उसके बीच में जो ये बीच की लेयर है दैट इज योर एन टाइप इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस मटेरियल एंड दिस इज योर एक्टिव रीजन जहां यहाँ शो किया है. दिस इज योर एक्टिव रीजन जहां रिकम्बिनेशन फॉर्म हो रही है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की और वहीं से उसी एक्टिव रीजन से स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा है लाइट का. ठीक है? और लेजर्स ऑकर्स. इज इट क्लियर? So the in heterojunction allows only a small active region where the light is produced. ठीक है? And these material, the whatever the active region, it is having higher refractive index than the material surrounding material. जैसे कि मैंने यहाँ बताया. सो जो भी बीच का जो लेयर है आपका सैंडविच की जो मटेरियल है उसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा एज कंपेयर टू द सराउंडिंग मटेरियल. जैसे कि कौन सा मटेरियल सराउंडेड बाय कौन सा मटेरियल है? सराउंडिंग मटेरियल कौन सा है? सैंडविच लेयर के दोनों साइड में कौन सी मटेरियल प्रेजेंट है? एन एन पी टाइप ऑफ इंडियम फॉस्फोरस. सो दिस इज द सराउंडिंग मटेरियल. उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा रहेगा? कम रहेगा एज कंपेयर टू द एक्टिव रीजन.
ठीक है. The material in the active region has higher refractive index which is 3.5. Okay, N1 is equal to 3.5 and surrounding material का कितना है refractive index, that is which is represented by N2 which is equal to 3.2. ठीक है, ये याद रखना है. And due to this it will create and it will help to confine and direct the light emitted. जो भी light emit हो रहा है, ठीक है, due to the recombination of electron and holes in the active region the light get emitted. जो भी light emit हो रहा है वो directly confined होगा, ठीक है, कहीं और डाइवर्टेड नहीं होगा. जैसे सिंगल होमो जंक्शन एलईडी में ये डिसएडवांटेज था वो यहाँ पे क्लियर हो गया. डबल हेट्रो जंक्शन, बाय यूजिंग डबल हेट्रो जंक्शन एलईडी द प्रॉब्लम इज गेट क्लियर. ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया क्या? ओके क्लास, इज इट क्लियर Is it clear, एवरीवन? everyone? Yes, ma'am. तो यस और नो रिप्लाई दो. Yes, ma'am. So you have to remember all the optical sources used in fiber system. ठीक है, कौन कौन सी ऑप्टिकल सोर्सेज मेनली यूज होती है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द इट शुड कंपैटिबल विद ऑप्टिकल सिस्टम. जो भी आप कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में जो भी ऑप्टिकल सोर्सेज ऑफ यूज कर रहे हो, ठीक है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होनी चाहिए. दीज आर सम रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट किस लिए होनी चाहिए कि जो भी आप ऑप्टिकल सोर्सेस यूज कर रहे हो वो कंपैटिबल होना चाहिए ऑप्टिकल सिस्टम के साथ. ठीक है, समझ में आया क्लास? पहले हम लोगों ने बेसिक एलईडी ऑपरेशन देखा जिसमें दो बैंड गैप्स, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, उसके बाद बेसिक पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड, हाउ इट वर्क इन फॉरवर्ड बायस, हाउ द रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस. उसके बाद different materials with different wavelength range, different band gap energy. This table is very important क्योंकि होमो जंक्शन एलईडी और हेट्रो जंक्शन एलईडी उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज करने वाले हो, तो यू शुड नो व्हाट मटेरियल इज यूज इन एलईडी कंस्ट्रक्शन. ठीक है, these are the list of some semiconductors, semiconductor material used as p type and n type. P-type and N-type semiconductor material list is given. According to that, each material, its wavelength range and band gap energy is very important. ठीक है, सो जो भी फोटोन एनर्जी होती है, photon energy and frequency is related. Its frequency is very important. The radiated wavelength, जो भी रेडिएट फोटॉन्स रेडिएट होने वाले हैं उसकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज गिवन बाय लैम्बडा which is equal to lambda is equal to hc upon wg. What is wg? wg is your band gap. ठीक है, बैंड गैप किस में दिया रहता है? बैंड गैप, बैंड गैप किस में मेजर करते हैं हम लोग? बैंड गैप का यूनिट क्या है? यस क्लास, जो भी बैंड्स यूज करते हो, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, उसका यूनिट क्या होता है? यस क्लास, वेवलेंथ किस में मेजर करता है? व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ वेवलेंथ? Lambda. Lambda is the sign or symbol used for wavelength. I am asking about unit. The wavelength is measured in meters. Okay, and the band gap in joules. So WG stand for band gap or energy gap, which is measured in joules, and wavelength in meters. Okay, class. So different material having different band gap energies. Silicon is not listed here. सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इस सारे मटेरियल्स में यूज किया नहीं जाता है. सिलिकॉन इज नॉट लिस्टेड इन द टेबल. व्हाई?
क्योंकि in the case of silicon, electron and holes are not recombined directly. Due to that, it making it inefficient material. That's why reason silicon is not listed in the table. There is gallium, indium, phosphorus, arsenide. These are the material, but silicon is not listed here. Okay? Silicon is also a semiconductor material, but it is not used in the LED construction. ठीक है? समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? Yes, class. Yes, ma'am. Is there any confusion in homojunction and heterojunction? Homojunction, what is mean homojunction? It only contains single material. Yes, the PN junction form with single semiconductor material. Okay, and in heterojunction, It contains dissimilar type of semiconductor material. very good. So heterojunction में भी दो क्लासिफिकेशन है, that is single heterojunction और double heterojunction. ठीक है? So in double heterojunction, two materials is used, and in the single heterojunction, एक ही मटेरियल के दो टाइप्स. ठीक है, समझ में आया? Why Yes, most ma'am. commonly double heterojunction LED is used? Double heterojunction is most commonly used because in the double heterojunction we use dissimilar semiconductors, and due to the different semiconductor material there is different band gap energies. Okay, two materials having different band gap energies and different refractive index, जैसे कि मैंने दिखाया था स्लाइड में. Different materials having different band gap energies and different refractive index. Yes, in the double heterojunction कौन सा मटेरियल यूज किया था? इंडियम फॉस्फोरस का पी एन एन सेमीकंडक्टर, और उसके बीच में जो मटेरियल था वो एन टाइप ऑफ इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस मटेरियल. ठीक है, तो ये सब जो तीनों मटेरियल्स यूज किए थे सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग थे, बैंड गैप एनर्जीज लेवल अलग थी, जैसे कि यहाँ पे शो किया है 1.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो इंडियम फॉस्फोरस उसका एनर्जी गैप है 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द बैंड गैप. ठीक है, इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, समझ में आया? So this is a curve used for refractive index N1 having refractive index 3.5, and N2 is a refractive index for indium phosphorus material. It is having different refractive index which is 3.2. Okay class, is it clear? So जो भी सैंडविच मटेरियल है उसमें ही रिकम्बिनेशन फॉर्म होता है, और रिकम्बिनेशन फॉर्म कहाँ होता है? एक्टिव रीजन में, हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अंडरलाइन किया है द मटेरियल इन द एक्टिव रीजन. व्हाट इज द मटेरियल यूज? एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस. फिर से बता रही हूँ, द मटेरियल इन द एक्टिव रीजन हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स than that of surrounding material. What are the surrounding material? P and N type materials of indium phosphorus. ठीक है, due to that higher refractive index of active region, whatever the light is get emitted is very well defined. समझ में आया? ओके क्लास, क्यों हम लोगों को वेरी वेल डिफाइन लाइट इमिशन चाहिए? Why there is a requirement that light, whatever the light is emitted, should be direct and confined? Yes, anyone in the class? Yes.
Why we are not using homojunction LED? Why we are using heterojunction or double heterojunction LED? यस क्लास, किसी को डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? होमोजंक्शन एलईडी में क्या प्रॉब्लम थी? एक ही टाइप का मटेरियल यूज होने की वजह से उन उस मटेरियल का सेम बैंड गैप और सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की रिकॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं होती थी, और जिसकी वजह से लाइट जो भी इमिट होता था वो वेल डिफाइंड और डायरेक्ट नहीं होता था. बट इन द हेट्रोजंक्शन, because of different material use, different material having different refractive index, different band gap energies, and due to that the higher refractive index of the material used in between the two surrounding material, जिसकी वजह से क्या होता था, ड्यू टू द हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द एक्टिव रीजन, whatever the light get emitted is direct and well confined. क्योंकि ये लाइट हम लोगों को कहाँ ट्रांसफर करनी है? ओवर द ऑप्टिकल फाइबर्स. और ऑप्टिकल फाइबर्स को कैसा लाइट चाहिए, लाइट इमिशन चाहिए? यस, इट शुड बी डायरेक्ट एंड वेल डिफाइंड. क्योंकि ये लाइट को, जो भी लाइट बीम्स है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं? ओवर द ऑप्टिकल फाइबर्स. ठीक है, उसकी वजह से हम लोगों को लाइट इमिशन कैसा चाहिए? इट शुड बी कन्फाइंड, वेल डिफाइंड एंड डायरेक्टेड. ठीक है, सो दैट्स वाई रीजन वी विल यूज डबल हेट्रोजंक्शन एलईडी. ओके क्लास? ओके क्लास? Yes, ma'am. And whatever the material use, its active region in the heterostructure has a higher refractive index, जो कि इस जो अभी हम लोगों ने डायग्राम देखी थी उसमें हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट द मटेरियल और एलईडी इज यूज. ओके, इज इट क्लियर क्लास? किसी को कोई कंफ्यूजन है? एलईडी स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, या फिर होमोजंक्शन हेट्रोजंक्शन जो आज देखा, उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. Okay class, I'll give you all these PPTs of this which is your topic 3, unit 3 का ये content हम लोग पढ़ रहे हैं, that is your optical sources. ठीक है, I'll give you all the PPTs related to every topic. unit 1, unit 2, unit 3 start किया है हम लोगों ने last lecture से, जिसमें हम लोगों ने optical sources पढ़े, जिसमें से एलईडी देखा. नेक्स्ट हम लोग लेजर डायोड्स देखेंगे. ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? इज इट क्लियर? असाइनमेंट ट्यूटोरियल सेंड कर दिया सब लोगों ने? Yes, ma'am. Sir. जिसने नहीं किया होगा वो लोग सेंड कर दो. असाइनमेंट ट्यूटोरियल सेंड करना है आपको गूगल क्लासरूम में, और जो अभी तक के ज्वाइन नहीं हुए हैं उनको ज्वाइन करना है जल्द से जल्द, और असाइनमेंट ट्यूटोरियल सॉल्व करना है. ठीक है, और आज ग्रुप पे रेगुलर स्टूडेंट्स जो क्लासेस अटेंड करते हैं उसकी लिस्ट भेजी थी एक, देखी क्या सबने? रेगुलर Yes, ma'am. स्टूडेंट हु इज अटेंडिंग ऑल द क्लास, 7 सिम की जो भी क्लासेस थी,
वो जो रेगुलर स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं उनकी लिस्ट एक डाली थी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, 7 सेम के ग्रुप पे। देखी क्या आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। उनमें जो लोग इंक्लूड है, जिनका नाम उसमें है, वही ग्रुप पे रहने वाले हैं। अगर इसके बाद भी अगर अदर देन दैट अगर स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते क्लासेस को, तो दे विल रिमूव फ्रॉम द ग्रुप, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ठीक है? सो प्लीज गेट सीरियस अबाउट दिस। अगर ग्रुप से निकाल दोगे तो पूरे सेमेस्टर में क्लासेस अटेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारे लिंक्स और जो भी डिटेल्स है वो आपके ग्रुप पे ही आती है, रिलेटेड टू क्लासरूम, रिलेटेड टू गूगल मीट। जो भी इंफॉर्मेशन है वो ग्रुप पे ही आती है। ओके, सो बी रेगुलर इन द क्लासेस, attend all the classes and be attentive. Okay class? यस मैम। Okay, thanks for joining. थैंक यू मैम। Thank you. थैंक यू मैम। और रिप्लाई भी करो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, queries in last 5 to 10 minutes. I'll repeat that. No problem. Okay.